تو السلام علیکم میرے ویورس. میں نے اپنے کیٹس کا روم ایک دم نیٹ اینڈ کلین کر دیا اور میری کیٹس بہت ہی ہیپی ہے. ان کو بھی کلرفل اور نیٹ اینڈ کلین جگہ بہت زیادہ پسند آتے ہیں. اور آج عرفہ ہے تو کل عید ہے انشاءاللہ رحمان. اور باہر سعودی عربیہ وغیرہ UAE ہر جگہ پہ آج عید تھا. تو عید تو اللہ کی طرف سے ہم کو تحفہ ہے روزے کا، جو ہم نے رمضان شریف کے احترام کی، بنا کسی لڑائی جھگڑے کی، بنا کسی گینا بکھس کی، اور بنا کسی کے دل نہیں توڑتے ہوئے، اور ہر ایک کو درگزر کرتے ہوئے، اللہ کی کہے ہوئے صحیح احکامات پہ رجوع کرتے ہوئے ہم نے رمضان شریف کے روزے کا احترام کیا. اور جو لوگ بھی بیمار ہے، خاص کر شوگر پیشنٹ ہے، بلڈ پریشر ہے، اور بھی کچھ بیماری سے جوجھ رہے ہو، کیونکہ یہ بیماری بھی بڑی بیماری ہوتی ہے، اور ان لوگوں کے لیے اگر روزہ نہیں رکھ سکا ہو تو اللہ کی طرف سے بالکل چھوٹ ہے. اور پھر امیر ہے تو اپنے حساب سے صدقہ کیا کرے، اور مڈل کلاس لوور کلاس ہو تو شوہر کو اپنی بیوی کے حق کا حصے کا جو بھی صدقہ ہو وہ کرنا ضروری ہوتا ہے. باقی روزہ رکھنا برحق ہے. اور روزہ رکھنا صرف نہیں ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے وجوہات ہوتے ہیں. نماز کا پڑھنا، نیت صاف رکھنا، دل ایک رکھنا، زبان سے سچ بولنا، اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھنا، اور اپنے ماں باپ حیات ہے ان کا بھی خیال رکھنا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے بیوی بچوں کا بھی حق ادا کرنا، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور بہت سارے رمضان شریف کے مہینے میں اچھے نیک اعمال جنہوں نے کیے ہو ان سب کو مبارک ہو. اور اللہ رب العزت ہم سب کو اگلے رمضان شریف بھی اسی طرح سے راضی خوشی گزارنے کی توفیق نصیب ادا فرمائے. اور جو بھی لوگ صحت سے نہ ٹھیک ہو ان سب کو اللہ رب العزت شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور حلال کی روزی کھانے کی نصیب ادا ہو، اور صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق نصیب ادا ہو، اور ہر ایک کو حلال کی روزی روٹی کمانے کی اور شریعت کے صحیح نقش قدم پہ چلنے کی، چاہے پھر وہ زندہ ہو یا مرنے کے بعد ہو، ہم سب کو قرآن اور حدیث کے روشنی پہ چلنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. اور آج عرفہ ہے، اور افطاری کے بعد میرا بہت دل کر رہا تھا کہ مٹن بریانی بناؤں گی، کیونکہ عید تو اللہ نے ہمیں روزے کا گفٹ دیے ہیں، اور عید کو کوئی بھی کسی بھی قسم کے رنج و غم کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے تو اللہ کا فرمان سب سے پہلا ہے، باقی دنیا جائے باہر میں. تو میں نے مٹن منگوائی تھی 5 کلو، تو پھر میں نے 2 کلو ابھی بوائل کر کے مجھے اسی طرح کھانے کو دل کیا، اور بہت ہی نرم گوشت تھا مٹن کا. تو میں تھوڑی سی چٹنی کے ساتھ میں نے سوچا گرم دیکھیں نا کتنا فلپی سا ایک دم اس کا یہ جو فیٹس، اینڈ آئی لو دس، مجھے یہ بہت پسند ہے فلپی فیٹس جو ہے. یہ میں کروں گی. واو، میٹ اتنا بڑھیا تھا کہ اسی طرح پک گیا، ایک سیٹی بھی دینا نہیں پڑا. تو اس کو میں شامی کباب بناؤں گی، اور باقی کا جو میٹ ہے میں اس کو بریانی بناؤں گی مٹن، اور ماشاءاللہ سے کل کے لیے. اور شیریں قورمہ بھی بناؤں گی، اور کچھ آئٹم بناؤں گی، کیونکہ بچوں کا عید ہے اور اپنا بھی عید ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ عید کو کسی بھی قسم کی ماتم کی گنجائش نہیں ہے. تو دیکھیں نا یہ فلپینس، اس کو میں اس میں تھوڑا سا یوں ڈبو کے کرتی ہوں. مجھے اس ٹائپ کے فیٹس بہت پسند، اور مجھے بھی آج اپنے ممی پاپا کی ہر عید کو مجھے اپنے ممی پاپا یاد آتے ہیں، لیکن شکر الحمدللہ میرے ممی پاپا بہت ہی نیک تھے، بہت ہی زیادہ. انہوں نے کبھی بھی کسی کا بھی دل نہیں توڑا ہے، اور ہر ایک کو ایک نظر سے دیکھا ہے. میں تو بہرحال بہت چھوٹی تھی جب میرے پاپا کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو اس کے بعد سے مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی انسان میرے پاپا جیسے بولنے کے لائق کا کوئی تھا. لیکن ہر عید کو میں اپنے ممی پاپا کو بہت زیادہ مس کرتی ہوں. اور دیکھیے میٹ اتنا عمدہ ہے نا کہ کیا بتاؤں، میں ہر ایک پیس کو میں کروں گی ابھی. تو جتنا رمضان شریف کا مجھے مہینے کا گزر جانے کا دل میں مجھے یاد آتی رہے گی، کیونکہ میرے ساتھ بہت گھٹنا گھٹی ہے. بہت دل دکھانے والے دل دکھاتے ہیں، لیکن شکر الحمدللہ اللہ رب العزت میرا دل نہیں دکھاتے ہیں. اور اللہ رب العزت مجھے اتنا
नेमतों से नवाजते हैं ना, कसम से मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। और आज तो चिकन तो एक बार से आपने 2 चिकन लाए थे, लेकिन चिकन खाने का इतना दिल नहीं करता है। तो मटन और बीफ अगर अच्छा हो वो भी बहुत सेहत के लिए अच्छा है। चिकन से लाख दर्जा बेहतर बीफ का गोश्त है। अगर छोटा वुज़ हो, छोटा बछड़ा हो, उसका गोश्त भी बहुत मज़ेदार होता है। लेकिन मटन का तो क्या कहना अपने आप में। देखिए इसके अंदर की जो नली है, तो ये मैं इसको खाऊंगी। और ये सब मैं थोड़ा थोड़ा करके, इतना सारा तो नहीं खाऊंगी, लेकिन अभी मेरी बड़ी बच्ची को भी मीट बहुत पसंद है और छोटी वाली बेटी को भी मीट बहुत पसंद है, लेकिन उसको फिर चिकन ज़्यादा पसंद है। लेकिन वो मीट लवर नहीं है जितना मैं और मेरी बड़ी बेटियां हैं, ये हम मीट लवर्स हैं। सो बस कल ईद है, तो एडवांस में ईद मुबारक सबको। और इंशाल्लाह कल का व्लॉग मेरा दूसरा होगा। तो तब तक के लिए सब लोग राज़ी खुशी रहिए, दिल में गिना बुखस बिल्कुल मत रखिए। और जब तक हम सब ज़िंदा है तो हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात के हुक्म से सब मिलजुल के रहें। और वो लोग बहुत बदकिस्मत होंगे जो लोग जीते जी एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से नहीं रह पाया हो, हर वक्त लानत मलामत करता रहा हो। और वो औलाद बहुत ही बदनसीब होंगे जो बाप हर वक्त कहता रहा हो कि इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा गमगीन हूँ, बहुत ही दुख हूँ। चाहे वो माँ कहे या बाप कहे, वो औलाद वाकई में बदनसीब होंगे। और वो औलाद भी बदनसीब होंगे जो झूठे ढोंग अब करेंगे, या फिर कुछ कुछ ऐसे, मतलब बहुत सारी बातें होते हैं ज़िंदगी में ना। तो इसीलिए इंसान को अच्छा बनना बहुत मुश्किल है। जो ज़ाती फितरतन तौर अच्छे होते हैं वो फिर हर वक्त अच्छे होते हैं, इंसाफ होते हैं। जो लोग ढोंगी होते हैं वो लोग ऐन मौके पे ढोंग करते हैं, चाहे फिर वो रोने के हो, हंसने के हो, खुशी की हो, दुख की हो। उनके अंदर बहुत सारे प्रिटेंडिंग वो बिहेवियर बहुत होते हैं। मुझे ऐसे लोगों से नफ़रत है और मैं ऐसे झुंड से दूर रहना पसंद भी करती हूँ। और बाकी जो भी दुनिया में हयात है, सब लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेक बनने की तौफीक अदा फरमाए। और हलाल की रोज़ी रोटी और अपने औलादों को सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की हिदायत देने वाले माँ बाप हो। अगर औलाद हो तो माँ बाप के साथ ग़िबत करने वाला ना हो, कम अज़ कम। अपने माँ बाप अगर बीमारी हालत में हो तो वो औलाद सबसे फिर बदनसीब होंगे जो ग़िबत में अपने माँ बाप को इन्वॉल्व करेंगे। तो माँ बाप को भी गुनाह से बचाए औलाद, और माँ बाप भी औलाद को गुनाह से बचाए। और अल्लाह ताला बस सब पे रहम फरमाए, और जो भी गुज़र गए हो उन सब की गुनाह मगफिरत हो जाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब पे रहम फरमाए, और हो सके तो बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बस मगफिरत। और वो लोग बहुत बड़े दिल होंगे जो उनके ऊपर बहुत ज़्यादती हुई हो, बहुत सितम हुआ हो, बहुत दिल दुखाया गया हो, बहुत सारी बातें हो जो इस दुनिया के नज़रों के सामने वो बयान पेश नहीं भी कर सक रहा हो, लेकिन उसके दिल में बहुत सारे ऐसे बात हो जो बहुत ही मतलब कहते हैं ना मेजर बात हो, लेकिन फिर भी उन सबको दरगुजर करते हुए अगर माफ़ी वाला दिल हो, और अगर माफ़ी दे रही हो या दे रहा हो, तो वो बहुत बड़ा बात होगा। बाकी ये दुनिया 2 दिन की है, या आज है तो कल नहीं है। सबको मर के उसी कब्र में जाना है, और वहाँ पर चाहे जितने भी आप जाके फिर कब्र पे रोए धोए, सोने की चादर बिछाए, कुछ भी करे, कुछ काम नहीं आने वाला है। जब तक ज़िंदा है तो माँ बाप का कदर किया कीजिए, सही मायनों में कदर, वो वाला नहीं कभी खुशी कभी गम वाला, हर हमेशा एक जैसे ही होना चाहिए। और बस राज़ी खुशी रहिए। तब बस अभी के लिए मैं ये छोटा सा मैंने ब्लॉग अभी बनाया। तो इंशाल्लाह कल ईद का ब्लॉग मेरा नया होगा। और आप लोग मेरे वीडियो को वॉच तो करते हो, तो बाकी तो मैं लाइक करो शेयर करो ये सब कहती नहीं हूँ, क्योंकि वो अल्लाह मेरे लिए कर देते हैं। तो मुझे थम्स अप वम्सअप की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज़ माई अल्लाह इज़ देयर फॉर मी। तो मेरे 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 मुझे क्या क्या मतलब नेमत मिलते हैं ना, वो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं जितना मुझे नेमत मिलती है। और मुझे अभी मेरा घर इतना सजा हुआ है ना, कसम से मेरा कोई मुझे बोल रहे थे इतना किसी का घर साफ़ सुथरा नहीं होगा, बिकॉज़ मेरा लिविंग स्टैंडर्ड ही क्लीनलीनेस से है। मुझे सफाई पसंद है और मैं सफाई परस्त हूँ, और मेरा दिल भी साफ़ है और मेरा सब कुछ साफ़ है। हाँ, ज़बान से कभी सामने वाले का अगर करतूत बहुत बुरा हो तो मैं गाली देती हूँ और मैं कुछ भी बोलती हूँ, लेकिन लॉजिक बोलती हूँ, उसको डंके के चोट पे बोलती हूँ। फिर वो सामने वाले को लग भी जाता है, क्योंकि वो खुद का करतूत को देखते हुए और
मेरी बात उनको लग जाती है ना। मैं तो बोलती भी नहीं हूँ किसी को पर्टिकुलर, लेकिन इन जनरल बोलती हूँ। लेकिन कुछ बात होते हैं कि जो वाकई में जो सामने वाले बहुत ही उनके हरकत बुरे हो, लापरवाह हो, और सिर्फ दुनिया के सामने अपने आप को दिखाता हो, अंदर से चार दीवारी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देख रहे होते हैं, बाहर के वाले नहीं देख रहे होते हैं, फिर भी बहुत सारे सितम जुल्म मतलब होता है ना। मतलब एक औरत के ऊपर सारी ज़िम्मेदारी उठाना भी पड़ता है कभी। और वो औरत कोई सरकारी नौकरी वाली नहीं होती है, कोई बाज़ारी काम करने वाली नहीं होती है, फिर भी उसके अंदर ऐसा एक मिरेकल होते हैं कि वो मतलब सब कुछ संभाल लेते हैं। बड़ा बड़ा मतलब जो हादसे हो, बड़े बड़े मेडिकल मतलब खर्चा हो, या फिर कुछ भी हो, घर में कुछ बड़ी चीज़ लाना हो, वो औरत संभाल लेते हैं। लेकिन वो औरत करती कुछ भी नहीं है, नौकरी नहीं करती है, घर में रहती है। लेकिन अब ये मिरेकल नहीं है तो क्या है ना। तो ऐसा भी होता है लाइफ में। तो मन साफ रखे, दिल साफ रखे। एनीथिंग इज़, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला लव्स यू एंड इफ़ यू आर अ रियल। तो आपको दुनिया का धक्का नहीं खाना पड़ेगा। सुबह से निकलो, शाम को आओ, ड्यूटी दो, ये दो, हराम के पैसे कमाओ, बेबरकती होता हो, कुछ भी नहीं पहुंचता हो। तो ठीक है, कल इस बारे में फिर और बात करेंगे। अभी के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मन खुशी भी है, गम भी है, दुख भी है, सब कुछ है। क्योंकि मैं दुख में दुख किसी के दुख को मैं हवा में नहीं उड़ाती हूँ, और किसी के खुशी में तो मैं शायद बहरहाल नहीं वो हो लेती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है यहाँ का दुख, यहाँ का गम, यहाँ का रंज। सब कुरान और हदीस के दायरे में नहीं है। इंसान ने बनाया हुआ वो बातें हैं, तो उसमें मैं शामिल कभी नहीं होती हूँ। और अपने आप को इस अजीब व करीब जो रिवाज है, इसमें ख़ुद को शामिल नहीं होने पे मैं बहुत ज़्यादा गर्व फील करती हूँ। मैं अपने आप को सैड और लेफ़्ट ओवर नहीं फील करती हूँ। लेफ़्ट ओवर तो उनको फील करना चाहिए जो भी ज़िंदगी में हो रहा हो, और मतलब है ना, लड़ाई झगड़ा, तू मैं। अब आज बस सब लोग जुटे बुटे फुटे कुटे बहुत कुछ होते हैं। तो मैं वैसी नहीं हूँ। मैं अपनी लाइफ बहुत ही पीसफुली गुजारती हूँ अपनी शॉर्ट सी फैमिली के साथ। और अगर मेरा बात उगलने को आए ना, उगला, तब तो मेरे पास फेरिस्त है उगाने के लिए। लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये दुनिया की इज़्ज़त नहीं है। यहाँ की शोहरत, यहाँ की इज़्ज़त, यहाँ की जलालत, दिस इज़ नथिंग, यू कैन हाइड इट, यू नो। लेकिन जो डे ऑफ जजमेंट का जो इज़्ज़त है, वो असली इज़्ज़त है। वहाँ की ज़िल्लत असली ज़िल्लत है, और वहाँ की पनिशमेंट असली पनिशमेंट मिलेंगे। और वहाँ का जो है ना लाइफ आफ्टर डेथ, दैट इज़ रियल वन। सो मैं वहाँ की क्रेजीनेस हूँ, वहाँ का मुझे क्रेविंग है कि डे ऑफ जजमेंट कब आए और अल्लाह के सामने सब कुछ क्रिस्टल क्लीन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। वहाँ तब हमारी ये जो जहन है ना, अभी जो शार्प है ना, इससे भी ट्रिपल हज़ारों गुना शार्प होंगे। वहाँ की जब ज़िल्लत अल्लाह ताला उनको दिखाएंगे, तो वो और भी ज़्यादा साफ से दिखाई देंगे। तो वहाँ की अज़ाब बहुत ही कठिन होंगे, मैं उस पर बिलीव करती हूँ। ओके देन, बाय बाय, गुड